Hi students, our lesson is going on. Lesson number 2, health and diseases. We have already completed lecture number 1st. This is our lecture number 2. So now see, in lecture number 1st हमने देखा था what is mean by health, what is mean by diseases, and after we already discussed about according to duration. So there are two types of diseases. We know that the first is according to duration and second is according to causes or reason. So according to duration, there are two types of diseases, chronic disease and एक्यूट डिसीज. तो जो हमारी क्रोनिक डिसीज होती है उसको हम लॉन्ग टर्म डिसीज भी बोलते हैं और एक्यूट डिसीज को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीज बोलते हैं. तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ये जो दो डिसीज है इसको कंप्लीट किया था. नाउ वी विल सी सेकेंड टाइप अकॉर्डिंग टू कॉजेस और रीजन. So see, there are two types of diseases according to causes or reason. The first is hereditary disease and second is acquired disease. Now we will discuss first what is mean by hereditary disease. So now see what is mean by hereditary disease. Hereditary diseases. The disease which transfer from one generation to another generation is known as hereditary diseases. The disease which transfer from one generation to another generation is known as hereditary disease. So this is the definition of hereditary disease. किसे बोलते हैं हम hereditary disease? The disease which transfer from one generation to another generation is known as hereditary disease. सो हेरिडिटी डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो क्या होती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास होते रहती है. फॉर एग्जांपल किसी के फादर है, किसी के फादर को हो सकता है कोई एक डिसीज हो, तो वही डिसीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है उसके चाइल्ड के अंदर. फिर हो सकता है बाद में डिसीज क्या होती होंगी अदर जनरेशन के अंदर पास होते जाएंगी. तो सच टाइप ऑफ डिसीज विच ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दिस डिसीज इज नोन एज व्हाट, हेरिडिटरी डिसीज. नाउ द एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी डिसीज इज डाउन सिंड्रोम. इसके एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल होती है डाउन syndromes. This is the name of disease. This is an example of hereditary disease. Now we will discuss the second disease. The name of that disease is acquired disease. So there are two types of acquired disease. The first is infectious disease and the second is non-infectious disease. So see first what is mean by infectious disease. So first is infectious disease. About the infectious disease, always remember infectious disease is also known as pathogen disease. This is known as pathogen disease. Means this disease is happen by the pathogen, therefore this disease is known as pathogen disease. But what is mean by pathogen? Pathogen means the organism which causes the diseases is known as pathogen. यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, यानी उसकी वजह से क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं पैथोजन. जैसे कि डिसीज हमको किस वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से क्या हो सकती है, हमारे को डिसीज हो सकती है. अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो उससे हमको क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है. सेकेंड अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस आर देयर. अगर कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे,
पैथोजन बोलेंगे, यानी वायरस से भी हमको क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है। इसी के अलावा बहुत से जो है कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से भी हमको क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है। सो ऑल दिस थिंग इज नोन एज व्हाट, पैथोजन, यानी जिससे हमको डिसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। तो मे बी बैक्टीरिया हो सकता है पैथोजन, मे बी वायरस हो सकता है, और मे बी अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। सो इन्फेक्शियस डिसीज इज आल्सो नोन एज व्हाट, पैथोजन डिसीज. Other point about the infectious disease, this disease can transfer from one person to another person. Remember this point also. So infectious disease can be transferred from one person to another person. ओके, इन्फेक्शियस डिसीज कैसी होती है, ये ट्रांसफर हो सकती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्लासरूम है, क्लासरूम में क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और कोई एक स्टूडेंट्स है उसको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है, तो हो सकता है कि उसके बाजू में अगर आप बैठे हो तो आपको भी क्या हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। यानी ये क्या हो रही है, डिसीज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आपको भी सर्दी जुकाम हो गया तो हो सकता है कि आपके बाजू में जो स्टूडेंट्स बैठा हो उसको भी क्या हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए। सो सच टाइप ऑफ डिसीज इज नोन एज infectious disease. Now example of infectious disease is, first is common cold. It is the best example of infectious disease. ये जनरली कॉमन कोल्ड जो है सभी को होते रहता है, तो ये कौन सी एग्जाम्पल हो गई, इन्फेक्शियस डिसीज की हो गई। सो यहीं पे लिखता हूं एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। अदर एग्जाम्पल फ्लू, अदर एग्जाम्पल डेंगू. So these all example are come in the infectious disease which can transfer from one person to another person. Now we will discuss next disease. The name of next disease is non-infectious disease. This is our last disease in this table. So see, non-infectious disease. Second is non-infectious disease. So first remember about the non-infectious disease. This disease also known as non-pathogenic disease. Non-pathogenic disease. And this disease is not transfer from one person to another person. इसके पहले जो अपनी डिसीज दिखी थी वो कौन सी थी, इन्फेक्शियस डिसीज थी. सो अपोजिट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. जैसे इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर हमने देखा था ये क्या होती है, पर्सन टू पर्सन क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है. बट इफ यू टॉक अबाउट द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, तो ये एक ऐसी डिसीज होती है जो पर्सन टू पर्सन क्या होती है, ट्रांसफर नहीं होती है. यानी किसी पर्सन को कोई डिसीज है तो दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगी. We will see the example. First see this. So non-infectious disease is also known as non-pathogenic disease, and other we can say it not transfer from person to person. It not transfer from person to person is known as non-infectious disease. Now see the example of non-infectious disease. कौन सी एग्जाम्पल है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की जो ट्रांसफर नहीं होती है पर्सन टू पर्सन. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर, फर्स्ट एग्जाम्पल इज डायबिटीज. डायबिटीज इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. यानी कि कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है और उस पर्सन को डायबिटीज है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको भी डायबिटीज हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन सी डिसीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, ट्रांसफर नहीं होती है. एक डायबिटीज का पर्सन है, अगर आप उसके साथ रहते हो या उसके साथ अगर आप शेयरिंग करते हो, खाना वगैरह भी खाते हो, तो वो जो डिसीज है आप में ट्रांसफर नहीं होंगी. सो डायबिटीज इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. द सेकेंड इज रिलेटेड टू हार्ट डिसीजेस. Heart diseases.
जितनी भी हार्ट रिलेटेड टू हार्ट, यानी जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस है तो वो भी कैसे डिसीज होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं। मीन्स पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होते, यानी किसी को हार्ट अटैक आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको भी हार्ट अटैक आ जाएगा। सो इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अदर एग्जांपल आल्सो कम एलर्जी। ओके, एलर्जी, अगर हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी भी क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। जैसे कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जो है खांसी होती है, या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जैसे वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा छींकें शुरू हो जाती है, स्नीजिंग होती है। तो ये जो छींके है तो ऐसा नहीं होता कि वो जो पर्सन है जिसको छींकों की एलर्जी है उसके सामने अगर कोई पर्सन है तो उसको भी क्या हो जाएंगी, एलर्जी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये कौन सी डिसीज होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी को स्नीजिंग हो रही है तो वो क्या है, कोरोना पेशेंट है। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं उसको एलर्जी होती है, तो एलर्जी की वजह से क्या होता है, बार बार खांसी आती है या बार बार उसको छींकें आ सकती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को छींकें आ रही है तो वो भी क्या है, कोरोना पेशेंट है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. So these are the example of non-infectious disease. Diabetes, heart diseases and different types of allergy come in the non-infectious diseases. So students, today we have completed our this chart or table in which different types of diseases are given. In next lecture we will discuss in detail about the infectious disease. अभी जो भी हमने देखा है infectious disease के बारे में, ये कैसा था, शॉर्ट में था। अब infectious disease के अंदर जो भी डिसीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, तो कौन से डिसीजेस है, ये डिसीजेज जो है कौन से पैथोजन यानी बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है या कोई अदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, उसके हम नेम देखने वाले। साथ ही साथ मोड ऑफ इन्फेक्शन, इनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या होता है, किस तरह से जो है ये इन्फेक्ट करते हैं किसी पर्सन को। साथ ही साथ अगर कोई डिसीज अगर किसी पर्सन को हो जाती है तो उसके सिम्टम्स कौन से है, उसके प्रिवेंशन यानी उस डिसीज को किस तरह से हम रोक सकते हैं, कौन से प्रोसेस है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।